for the body. Similarly, nutrition is life for an athlete. Energy comes from food. And friends, if when we are training for the Olympics and when we are 21 days outside our country and we don't get the Indian food, what is the state of affair? How do you ensure that you are able to maintain the calorific value and still after 21 days perform to the peak? Can only happen if we have a little knowledge about nutrition, how the carbohydrates in the body help you to give energy and how proteins help you to give the muscle growth and repair. So it is so for the coaches, मैं सभी कोचेस से अनुरोध करूंगा, ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये आपको जो हमारी हिमानी जी हैं, शी इज MSc in nutrition, she is the executive director with the food sports and nutrition group. She has been practicing nutrition for the last 14 years. She has been attached with the Chhatra Stadium and also the stadium in Nasik. She has been helping a lot of international athletes, national medalists and archers. So now we will be able to learn from Himani ji what nutrition is all about, why nutrition is so important for sports, and how, especially for your competition and especially for the main tournaments like the World Championship, the Asian Championship and the Tokyo Olympics, what do we do to ensure that our sportsmen are fit, our sportsmen have the energy and they perform and win a medal for the country. So over to Himani. Thank you, sir. Thank you for a humble introduction. Good morning, everybody. First of all, I would like to thank Sai and Archery Association of India for giving me such a beautiful platform to share my knowledge. Also, I would like to thank Dr. Joris, Dr. Hussaini and Mr. Chandurkar for giving us such a wonderful opportunity. तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी स्लाइड पे जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज bullseye. So bullseye is what and every archer is dreaming of and every archer is thinking of doing. But यहाँ पे bullseye से मेरा मतलब ये नहीं है कि हमें हर बार 10 ही स्कोर करना है. But bullseye actually means that we are able to perform to the best of our potential and we are able to give to the best of our performance. तो उसके लिए हमें हमारी बॉडी को फ्यूल करना भी बहुत जरूरी है. And we need to eat properly to fuel the body to get the maximized results. तो आगे की स्लाइड्स में हम लोग को डिस्कस करने वाले हैं एंड आई होप आफ्टर द एंड ऑफ द सेशन यू वुड हैव एम्पल ऑफ नॉलेज अबाउट न्यूट्रिशन. So I think there's a problem. The slide is not going forward. Yeah, so you again get out and again comment. You yeah, I'll just stop sharing and I'll do it just again. Stop sharing. Again, share the screen, but remember, share the screen, not the presentation. So when you go to the screen, there's a screen which will come on that. Select screen, select the audio and the video, and then share the screen. Yeah. तो इससे पहले कि अपना प्रेजेंटेशन शुरू करूं, मैं आपसे एक ये कोरियन क्लिप शेयर करना चाहूंगी. As we know कि since 1984 Korea has been winning medals in the archery continuously. So इससे पहले कि we understand what nutrition is, just try to understand कि वो लोग कितना efforts डालते हैं to win a medal. 평생 써야 할 화살 발수를 중고등학교 때 봐서 다 끝만큼 쏴요. 화살 발수. 총 선발이 한 4,055발을 쏘더라고요. 그 선수들은 4,055발이면 보통 선수들은 몇 개월 이상 쏴야 우리는 단순하게 그 대회 하나, 선발전 하나를 뛰는데도 그렇게 쏘니까 전반적으로 모든 종목 तो जैसे कि हमको पता है कि आर्चरी जो है वो एक स्किल का गेम है. वी हैव टू ट्राई टू सप्रेस डिस्प्लेसमेंट. उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए, हमें एफर्ट्स डालने पड़ते हैं. जैसे कि हमने इस स्लाइड में इस पावर पॉइंट इस वीडियो में देखा कि एक कोरियन आर्चर एक कंटेस्ट के टाइम पे एक कंपटीशन के ट्रेनिंग के पहले ऑलमोस्ट 4055 एरोज पुल कर रहा है, एरोज ड्रॉ कर रहा है. That comes to approximately around 600 arrows, more than 600 arrows, 800 arrows per day.
So imagine the amount of energy and the efforts that they are using to pull those arrows. तो जब भी हम कोई ट्रेनिंग करते हैं या जब हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें वार्म अप स्किल्स इन्वॉल्व होते हैं, उसमें टैक्टिकल वर्क इन्वॉल्व है, उसमें स्किल वर्क इन्वॉल्व है, साथ ही साथ उसमें स्ट्रेंथ लगती है और हम बाद में कूलिंग डाउन या वार्म डाउन भी करते हैं। तो इस एक्टिविटी का हमारी बॉडी पे, हमारे फिजिक पे टोल पड़ता है, जिसको हम फटीग कहते हैं। एंड इस फटीग से हमारी बॉडी पे क्या चेंजेस आते हैं? तो जो हमारा मस्कुलर ग्लाइकोजन रिजर्व है वो डिप्लीट हो जाता है, लैक्टिक एसिड इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे मसल्स में वीकनेस आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होती है, हीट इंक्रीज होती है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा प्रोटीन कैटाबॉलिज्म जो है वो ज्यादा होता है, फ्लूइड्स का लॉस होता है, एंड बिकॉज ऑफ फ्लूइड लॉस इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी होता है। तो यहाँ पे एक कोमलिका का वीडियो है। Again, just try to understand the amount of effort that she has to put, the amount of energy that she has to utilize in just 10 seconds of pulling the arrow and pulling the bow and releasing the arrow. तो इसीलिए जो एनर्जी लगता है, यूटिलाइज होता है, उसके हिसाब से हमने हमारे जो आर्चर्स ट्रेनिंग कर रहे हैं उसको 3 कैटेगरीज में ग्रुप किया है, लाइट ट्रेनिंग, मीडियम ट्रेनिंग एंड हेवी ट्रेनिंग। ये हमें ध्यान में रखना है बिकॉज आगे हम डाइट कैसे प्लान करने वाले हैं वो इस ग्रुप्स के हिसाब से ही डिसाइड होगा। यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो 2 इंटरनेशनल आर्चर्स हैं, क्रिस्टल गॉविन एंड ली फोर्ड फार्टी। ली फोर्ड फार्टी एक पैरा आर्चर है। दोनों का क्या कहना है कि जब वो न्यूट्रिशन के बारे में ध्यान दे रहे हैं तो उनके लिए प्राइम इंपॉर्टेंस होता है हाइड्रेशन। They try to hydrate themselves, they try to keep drinking water as much as they can. इसके अलावा वो इलेक्ट्रोलाइट्स का भी ध्यान उतना ही रखते हैं, सिर्फ प्लेन पानी नहीं पीते हैं, तो वो लोग पानी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करते हैं so as to keep continuing their efforts. डाइट एक बहुत वास्ट एरिया है। आपको आपके पेरेंट्स एडवाइस देते हैं, टीचर्स एडवाइस देते हैं, फ्रेंड्स एडवाइस दे रहे हैं, हम एज कोच भी हमारे आर्चर्स को काफी एडवाइस देते हैं। काफी बार ये इतना इंफॉर्मेशन होने की वजह से पर्सन कंफ्यूज हो जाता है कि दिल की सुननी है कि मन की सुननी है। दिल कहता है कि चल कुछ नहीं होता, आज आके एक पेस्ट्री खा के आ जाते हैं, बट माइंड कहता है कि नहीं, वी हैव टू बी फोकस्ड ऑन अ डाइट एंड वी हैव टू ईट ओनली व्हाट हैज बीन गिवन टू अस। तो जो भी हम खाना खा रहे हैं उसका हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है ना, फिजियोलॉजिकल। हम जो भी खाना खा रहे हैं उसमें से हमें एनर्जी मिलती है, हमें स्ट्रेंथ मिल रही है, उसी से हमारे जो बॉडी फंक्शंस हैं वो काम करते हैं। इसके अलावा फूड का हमारे साथ एक बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल, एक इमोशनल अटैचमेंट भी है। अगर मुझे आप मेरा मनपसंद खाना दे दोगे तो मैं बहुत खुशी खुशी उसको खा लूंगी। अगर आप मुझे खीर फीकी दोगे तो खीर खाने का मजा नहीं आता है। जैसे ही अगर आप मेरे को चावल देते हो बिना नमक वाला, तो वो चावल या पुलाव खाने का मुझे मजा नहीं आएगा। तो वैसे ही अगर हम इवेंट से पहले कुछ ऐसा खाना खाते हैं जो मुझे पसंद नहीं है, तो प्रोबेबली मुझे वो सेटिस्फैक्शन और सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से शायद से मेरी जो एक्टिविटी है, जो मेरा इवेंट है, उसके ऊपर भी उसका इफेक्ट हो सकता है। तीसरा होता है कॉग्निटिव सिस्टम। जैसे कि हमें पता है कि आर्चरी में हमारे लिए हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फूड में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे न्यूरोट्रांसमिशन को इम्प्रूव करते हैं, जिसकी वजह से हमारा हैंड आई कोऑर्डिनेशन और हमारे बाकी जो कॉग्निटिव स्किल्स है वो भी इम्प्रूव हो सकते हैं। तो इससे पहले कि हम फूड में आगे डिटेल में जाएं, एक बेसिक बताना चाहूंगी आपको फूड के बारे में। फूड में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं, जो कि 6 न्यूट्रिएंट्स हैं। इनमें से जो 3 हैं वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और बाकी के 3 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमें एनर्जी देते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं मिनरल्स, विटामिन एंड वाटर, जो हमें मदद करते हैं इन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में से एनर्जी रिलीज करने में। हम यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के बारे में ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कि हम सबको पता है, एनर्जी फूड है। वो हमारे ब्रेन को और मसल्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एक्सरसाइज के दौरान। कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ एग्जांपल्स हैं चपाती, राइस, उपमा, डोसा, दलिया एंड फ्रूट्स। दूसरा आता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हमें हमारे मसल्स के बिल्डिंग के लिए और रिपेयर के लिए चाहिए। इसके अलावा प्रोटीन्स हमें मदद करते हैं एंड्योरेंस और एबिलिटी बढ़ाने में, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेंथ मिलती है एरो ड्रॉ करने की और उसको लेंथ पे स्ट्रेच करने की। प्रोटीन्स के एग्जांपल्स हैं मीट, एग, फिश, दाल एंड नट्स।
तो हम जो भी खाना खा रहे हैं, ग्लूकोज, फैट्स और प्रोटीन्स हमें एनर्जी देते हैं। ये जो एनर्जी है ये हमारे बॉडी में एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है, और जब हमें एनर्जी मिलती है तो साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी रिलीज होता है। ये जो एनर्जी यूटिलाइजेशन है ये ऑक्सीजन के एब्सेंस और ऑक्सीजन के प्रेजेंस दोनों में होता है। तो जब भी आप कोई भी मूवमेंट कर रहे हो, जब आप एरो भी ड्रॉ कर रहे हो तो आपका मूवमेंट हो रहा है आर्म्स का, दैट इज आपके मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्शन में जाते हैं और एक्सपेंशन में जाते हैं। हर बार जब भी एक मसल का मूवमेंट होता है तो एक एनर्जी मॉलिक्यूल जो कि एटीपी फॉर्म में होता है वो ब्रेक डाउन होता है और उसमें से एनर्जी रिलीज होती है। एंड ये जो एटीपी है ये बाद में जाके एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे लिए बीइंग एन आर्चर बहुत जरूरी है कि एटीपी कहाँ से आता है इसके ऊपर हम वर्कआउट करें। तो एनर्जी रिलीज के ह्यूमन बॉडी में 3 सिस्टम्स हैं। पहला है फॉस्फेजिन, दूसरा है ग्लाइकोलाइटिक और तीसरा आता है ऑक्सीडेटिव। फॉस्फेजिन जो कि डायरेक्टली एटीपी है जिसको हम एटीपी क्रिएटिन भी कहते हैं। दूसरा आता है ग्लाइकोलाइटिक जो कि हमारे ग्लाइकोलिसिस या ग्लाइकोजन के ऊपर होता है, ये एनारोबिक है। तीसरा है ऑक्सीडेटिव जो बेसिकली ऑक्सीजन यूज करता है एनर्जी सप्लाई के लिए। इन अ ह्यूमन बॉडी ये 6 पाथवेज हैं जहां से हमें एनर्जी मिलती है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 6। बट एक आर्चर के लिए सिर्फ ये जो फर्स्ट 2 पाथ्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जहाँ पे डायरेक्टली एटीपी मॉलिक्यूल्स जो बॉडी में प्रिजर्व है उनका यूटिलाइजेशन होता है एनर्जी में, और दूसरा होता है जो हमारे पास ग्लूकोज है या जो ग्लाइकोजन रिजर्व हमारे पास है उसका ब्रेकडाउन होता है एंड इवेंचुअली वहां से एटीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं और एक आर्चर को एनर्जी मिलती है। तो बीइंग एन आर्चर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम फर्स्ट और सेकंड पाथवे पे फोकस करें। ये एक समरी है कैनेडियन आर्चरी एसोसिएशन की। तो अगर आप ध्यान देंगे तो उन्होंने कहा है कि ऑन एन एवरेज एक आर्चर 1 घंटे में 230 कैलोरीज बर्न करता है। और ये जो 230 कैलोरीज है ये एक अप्रोक्सीमेट है डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच इज योर हाइट एंड योर वेट। So we also need to concentrate that the energy system that is being utilized by the body is anaerobic and ATP. This is a summarization which is given by NIN, National Institute of Nutrition, जिनका कहना है कि on an average a person should be consuming, an archer should be consuming 50 kilocalories per kg per day. So if it's a 60 kg weight, the approximate energy intake should be 3000 kilocalories in a day. But this does not take into consideration the sedentary days, the light training, the medium training and the heavy training. So आगे के कंसेक्यूटिव स्लाइड्स में जैसे कि हमने देखा था कि इंटेंसिटी ऑफ वर्कआउट होता है लाइट, मीडियम और हेवी, उसके हिसाब से हमने कैलोरी इनटेक को जस्टिफाई करने की कोशिश की है। So if a person is doing light training, he should be consuming around 41 to 50 kilocalories per kg body weight. If it is medium training, it should be around 51 to 60 kilocalories per kg body weight. If it is heavy training, it should be around 61 to 75 kilocalories per kg body weight. तो ये तो हो गया एनर्जी के बारे में। बट एनर्जी जैसे मैंने आपको पहले बताया हमें मिलती है कार्बोहाइड्रेट्स से, फैट्स से एंड प्रोटीन्स से। सो हाउ डू वी गेट इट फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स? तो जैसे कि पहले आपको गायत्री मैम ने बताया था प्रीवियस सेशंस में, आपको संजीव सर ने बताया है कि आर्चरी इज अ मेंटल वर्क। ऑलमोस्ट 51% डिपेंड्स अपॉन आवर मेंटल स्किल्स, और ये मेंटल स्किल्स हमें कहाँ से मिलेंगी? ब्रेन से। So brain is a very vital organ or a very vital important plays a very vital important role जब हम आर्चरी के बारे में बात कर रहे हैं। बट इसके अलावा ब्रेन न्यूट्रिशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डू वी नो दैट जो टोटल बॉडी कंजम्पशन है ग्लूकोज का, उसमें से ऑलमोस्ट 20% इज यूटिलाइज्ड बाय द ब्रेन। ब्रेन 20% ग्लूकोज यूज करता है आउट ऑफ द एंटायर कंजम्पशन ऑफ द ग्लूकोज। पर ब्रेन इस ग्लूकोज को स्टोर करके नहीं रख सकता है, इसीलिए हमें ग्लूकोज को उसका एक रेगुलर सप्लाई करते रहना पड़ता है। तो हाउ डू वी नो कि हम कार्बोहाइड्रेट्स प्रॉपर बैलेंस्ड अमाउंट में ले रहे हैं कि नहीं? इफ ईदर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस, देन हमारा कार्ब इनटेक कम है। अगर फिनिश करने पे जो हमें स्ट्रेंथ फील हो रही थी, वो हमें स्टार्ट करने पे जो हमें स्ट्रेंथ फील हो रही थी, अगर वो हमें फिनिश करने पे फील नहीं हो रही है, या फिर एरो पुल करते करते ही हमारा बो आर्म ड्रॉप हो जाता है, या फिर फुल ड्रॉ करने के बाद आपको फटीग आ जाता है या तुरंत स्वेटिंग हो जाता है,
और probably at the end of the shoes आप थकान फील कर रहे हो, तो we need to work on our carb intake. हमारा carb intake शायद से less हो रहा है. So how do we work out on the carb intake? अगर light training है तो it should be around 5 to 7 grams per kg body weight. If it is medium training, it can be around 7 to 10 grams per kg body weight. If it is heavy training, it can be around 10 to 12 grams per kg body weight. तो ये तो हो गया कार्ब इनटेक के बारे में. पर अब आप मुझे पूछोगे कि मैम कार्ब्स वर्कआउट कैसे करने हैं, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने आपको एक छोटा सा टूल दिया है जिसे हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कहते हैं. ये आपको इजीली अवेलेबल भी हो जाएगा. ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब ये है कि जब भी हम कोई खाना खा रहे हैं, उसको खाने के बाद हमारे बॉडी में 2 घंटे के बाद शुगर कितना आता है, उसके हिसाब से हम उनको कैटेगराइज करते हैं इन लो, मीडियम एंड हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स. तो अगर हमें ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स पता हो, हम इसको यूज कर सकते हैं हमारी डाइट्स को प्लान करने के लिए. ये एक चार्ट दिया है ग्लाइसेमिक इंडेक्स का. तो अगर हम एक्सरसाइज करने से पहले कंसिडर करेंगे, तो एक्सरसाइज करने से 2-3 घंटा पहले हमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स या मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड्स खाने हैं. ड्यूरिंग एक्सरसाइज हमें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स खाने हैं. प्रेफरेबली जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड्स यहाँ पे रहेंगे वो लिक्विड फॉर्म में रहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा. आफ्टर एक्सरसाइज अगेन फर्स्ट 30 मिनट्स में हमें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स खाना है, एंड आफ्टर एक्सरसाइज फ्रॉम 30 मिनट्स टू 24 आवर्स इट हैज टू बी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स, ताकि हम बॉडी का रिकवरी फॉर नेक्स्ट इवेंट अच्छे से कर सकें. बट कार्ब्स लेते समय हमें ध्यान में रखना है कि हमें चीनी नहीं खानी है, हमें लो फैट आइसक्रीम नहीं खाना है, हमें सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं खाना है. कुछ स्पेसिफिक स्पोर्ट्स ड्रिंक्स जिसमें शुगर बहुत ज्यादा होता है वो हमें अवॉइड करना है, या फिर हाई फैट कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि पेस्ट्रीज है, चिप्स है, केक्स है विद आइसिंग्स, या फिर बहुत मीठे चॉकलेट्स वगैरह है, वो हमें अवॉइड करने हैं. व्हाई? बिकॉज जब भी हम शुगर कंज्यूम करते हैं ज्यादा, तो उसकी वजह से एक शुगर रश होता है. दैट मीन्स आपके ब्लड में शुगर तुरंत आता है, एंड उसके बाद शुगर क्रश होता है. दैट मीन्स वो स्पाइक के बाद एक तुरंत फॉल आ जाता है, एंड आपका जो एनर्जी है वो ड्रेन आउट हो जाता है. सो व्हाट हैपेंस इज there is a peak and then there's a sudden fall in the energy level. As a result, an athlete or an archer would feel a lot of lethargy. For example, अगर आप लोगों ने बहुत हेवी खाना खाया है, या आलू वाला बहुत सब्जी खा लिया है, या समोसा खा लिया है, तो समोसा खाते समय तो बहुत एंजॉय करेंगे, बट आफ्टर यू हैव कंज्यूम्ड द समोसा विद इन हाफ एन आवर 1 hour you will feel a period of lethargy. So we have to avoid that, and for that reason we have to avoid these sugary carbohydrates. The other is proteins. Proteins के लिए synonymous word is the muscle food. Proteins हमारी body को strengthen up करते हैं, हमारा hand-eye coordination improve करते हैं. They help us achieve the balance. They help us maintain the optimum body weight. They also help us have a proper posture, and they also help us in the recovery of the body. So how do we manage with the proteins? Light training में it should be 1 gram per kg body weight. If it is medium training, it can be 1 to 1.4 gram per kg body weight. If it is heavy training, it can be 1.4 to 2 grams per kg body weight. So what are the sources of proteins? We have animal sources of proteins, we have plant sources of proteins. Friends, we need to understand here कि जो animal sources होते हैं protein के, वो first quality protein होता है, which is more beneficial than the plant sources of animal protein. तो हमें कॉन्सेंट्रेट ज्यादा करना है एनिमल सोर्सेज के ऊपर. जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, दे कैन ऑलवेज गो फॉर कर्ड, दे कैन गो फॉर मिल्क, और दे कैन आल्सो गो फॉर द वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स व्हिच आर अवेलेबल इन द मार्केट. प्लांट सोर्सेज में वी कैन हैव नट्स, सीड्स, वी कैन आल्सो हैव दाल, बट नट्स में, दाल में, सीड्स में फैट भी ज्यादा होता है और कार्ब्स भी ज्यादा होता है. तो वी नीड टू हैव अ बैलेंस ऑफ ऑल द थ्री व्हेन वी आर प्लानिंग अ डाइट. दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे लिए है वो ये है कि अगर हमने ध्यान दिया हो तो इंडियंस पर से प्रोटीन्स कम कंज्यूम करते हैं. इवन इफ वे नॉन वेजिटेरियन, हम स्ट्रिक्ट नॉन वेजिटेरियंस नहीं हैं. हम लोग हफ्ते में 1 बार या 2 बार ही नॉन वेज खाते हैं. एज अ रिजल्ट बॉडी का जो डेली रिक्वायरमेंट है प्रोटीन्स का, वो ही नहीं मिल पाता है. सो इफ आई एम सेइंग यू हैव टू ईट 60 grams ऑफ प्रोटीन्स इन अ डे, दैट मीन्स ऑलमोस्ट हम लोगों को एक अंडे में से 5 ग्राम प्रोटीन मिलता है. So that means I have to be consuming around 12 to 15 eggs in the entire day to get that much amount of proteins. और मैं यहाँ पे पूरे अंडे की बात कर रही हूँ, सिर्फ व्हाइट की बात नहीं कर रही हूँ, right?
So we really need to work out on the protein content. Simultaneously, we also need to work out on the carb content because excess protein की वजह से भी कई बार problems आ जाते हैं. So यहाँ पे मैंने एक easy way out बनाने की कोशिश की है कि हम हमारा एक meal कैसे plan कर सकते हैं. Groups किए हैं. पहला group है cereals का. Cereals में rice है, दलिया आता है, चपाती है, क्विनोआ आता है, ओट्स आता है. अगर आप बाहर ट्रैवल कर रहे हो तो आप राइस केक्स देख सकते हो. बॉइल्ड पोटैटो आता है. प्रोटीन्स में एग्स, मीट, फिश, चीज या कॉटेज चीज है, कर्ड है या योगर्ट है. तो हम इन दोनों में से एक चीज ले सकते हैं. इसके साथ में हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को ग्रुप कर सकते हैं. Along with it, we can also have the side foods like the peanut butter or almond butter, which is easily available in the market. And we can also combine it with some nuts like the muskmelon seeds, जो कि खरबूज के बीज है. साथ में हम pumpkin seeds या कद्दू के बीज भी ले सकते हैं या फिर almonds भी ऐड कर सकते हैं. But जब भी आप इनका proportion ले रहे हो, इनका portion size decide कर रहे हो, we also need to mention about the ratio कि protein carb ratio हमारे diet में या हमारे food में कितना होना चाहिए. So a carb protein ratio has to be 4:1 when we're talking about the food 3 to 4 hours before the exercise. Example है, हम boiled potato vegetable ले सकते हैं with curd या फिर हम पराठा ले सकते हैं दही के साथ. अगर आप travel कर रहे हो जहाँ पे पराठा available नहीं है, we can always go for a baked potato with paneer and a glass of milk. या फिर हम दलिया ले सकते हैं, मीठा दलिया, गुड़ डाल के. शुगर अवॉइड करना है, we can always go for jaggery या फिर we can always go for dates also. या फिर इसकी जगह पे हम लोग ब्रेकफास्ट सीरियल्स भी ले सकते हैं with milk and banana. When it is before 1 or 2 hours, it has to be a 4:1 ratio. A 4:1 ratio of carbohydrates and proteins preferably has to be in the liquid form. जहाँ तक हो सके solid form में नहीं लेना है. It can be a milkshake, it could be a banana shake, or it could be a smoothie also, or it could be a flavored yogurt as well. During workout हमें ध्यान में रखना है कि हम sports drink ले सकते हैं, हम carbohydrate gels ले सकते हैं या फिर हम sports bar जो market में available है वो भी consume कर सकते हैं. After the exercise, within 30 minutes, the carb protein ratio has to be 3:1. But again, कोशिश करनी है कि हमें इसे semi solid या liquid form में रखना है. It could be flavored yogurt again या फिर हम curd और banana भी ले सकते हैं. And after exercise, 30 minutes to 2 hours, it has to be normal food. Normal food could be dal rice, it could be idli sambar chutney, or it could be rice cake with peanut butter. It can also be vegetable sandwich या फिर आप peanut butter ले सकते हो sandwich और salad के साथ में, या फिर आप bread roll भी ले सकते हो with cheese और baked beans on toast. यहाँ पे मैंने comparison दिया है. Easy foods, ready foods, junk foods are not always healthy. तो आप ट्रैवल कर रहे हो तो एक्सक्यूज नहीं है कि मुझे अच्छा ऑप्शन नहीं मिला इसलिए मैंने खाना नहीं खाया और मैंने खाना नहीं खाया तो मैं ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाया. नो, ऑप्शंस हम लोग अपने आप वर्कआउट कर सकते हैं. अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक पैकेट है वेफर्स का, उसके कंपैरिजन में यहाँ पे मैंने एक कॉम्बिनेशन दिया है जिसमें कॉफी है, जिसमें फ्रूट्स और साथ में एक बन भी है. तो दोनों में कैलोरी सेम है, बट अगर आप ध्यान देंगे तो प्रोटीन कंटेंट हमें ज्यादा मिल रहा है कॉफी विच इज विद मिल्क, एंड हमें जो फैट कंटेंट है वो कम मिल रहा है उसमें. एंड द कार्ब्स इज आल्सो मच मोर बेटर एंड मच मोर हेल्दियर इन द फ्रूट्स एंड द कॉफी कॉम्बिनेशन. यहाँ पे मैंने एक गाइडलाइंस दिए हैं जो वर्ल्ड आर्चरी एसोसिएशन ने दिए हैं. दिस इज द गाइडलाइन एंड इफ यू कैन सी उन्होंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि हमें लो फैट कुकिंग मेथड यूज करना है एंड प्रेफरेबली वी हैव टू यूज बेक्ड, बॉइल्ड और रोस्टिंग एज द मेथड. जहाँ तक हो समय हमें बटर का और ऑयल का जो कंजम्पशन है वो कम से कम करना है. बट व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग हियर इन इंडिया इज दिस. ये एक नेशनल कैंप का फोटो है यहाँ पे एक लंच का और डिनर का मैंने फोटो डाला है. अगर आप देख सकेंगे तो यहाँ पे ऑयल कंटेंट बहुत ज्यादा हाई है. यहाँ पे मैंने मसाला फ्राइड पापड़ नहीं डाला है जो एक्चुअली वहाँ पे मेनू में अवेलेबल था. और दूसरा अगर आप ध्यान देंगे तो जो यहाँ पे स्प्राउट्स रखे हैं ये रॉ स्प्राउट्स हैं, इनको बॉईल भी नहीं किया गया था. तो रॉ स्प्राउट्स लेने की वजह से एक डाइजेशन नहीं होता है, उसकी वजह से डायरिया हो सकता है या कॉन्स्टिपेशन हो सकता है या फिर जो जीआई सिस्टम है वो भी इरिटेट हो सकता है एक आर्चर का. एंड देन हाउ डू वी एक्सपेक्ट देम टू परफॉर्म विद दिस हेवी फूड्स. तो ये एक
आइडिया दिया है मैंने एक आर्चर का प्लेट कैसा होना चाहिए. 1/3 of the plate should be proteins, 1/3 can be the immunity foods, which is the vegetables and the fruits, and 1/3 of the plate can be the carbohydrates, जो कि हमें राइस, चपाती और उपमा में से मिल सकते हैं. This is during the competition or a day before the competition. And after the competition और rest days पे plate change हो जाता है, protein content increase हो जाता है, it becomes half the plate, 1/4 becomes the carbohydrates and 1/4 becomes the immune foods. इसके बाद आता है vitamins. हमारे लिए vitamins important है because वो हमें digestion में, absorption में और metabolism में मदद करते हैं. इसके साथ साथ वो हमारे immunity system को भी boost करते हैं. विटामिन्स दो तरह के होते हैं. पहला है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स. इसमें जो सबसे कॉमन और अबंडेंटली अवेलेबल है वो विटामिन सी है. बट सैडली विटामिन सी है जो हम सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं. हम लोग कभी भी विटामिन सी का टेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग कभी भी विटामिन सी रिच फूड्स नहीं खाते हैं. बट इंडिया या टिपिकल ट्रेडिशनल इंडियन जो कुकिंग है उसमें विटामिन सी बहुत अबंडेंटली अवेलेबल है. फॉर एग्जाम्पल आंवला. आंवला इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी अवेलेबल एनीवेयर. इनफैक्ट विटामिन सी हीट में डिस्ट्रॉय हो जाता है, पर आंवला में ही ऐसा विटामिन है जो अगर आप सन ड्राई भी करते हो तो भी उसके बाद वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है. तो हमें डिसाइड करना है कि कल से ही, सुबह से, मॉर्निंग से ही हमारे आर्चर्स को सबको बोलने वाले हैं कि फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग दैट दे वुड बी हैविंग इज 1 ड्राइड पीस ऑफ आंवला. अगर आंवला अवेलेबल नहीं है अभी तो अभी आप नींबू भी ले सकते हो. नींबू निचोड़ के गर्म पानी में लेंगे तो भी चलेगा. तो सुबह सुबह लेने से फायदा ये होता है जो हमें एंटायर डे में विटामिन सी की रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल करते हैं. दूसरा है विटामिन B12. विटामिन B12 अगेन इज समथिंग जो हम नॉर्मली टेस्ट नहीं करवाते हैं, बट इसका भी डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है इंडिया में. विटामिन B12 कम होने की वजह से हमारे मसल्स में वीकनेस आ जाती है, स्ट्रेंथ नहीं रहती है. एज अ रिजल्ट जो हमारा होल्डिंग है वो नहीं होता है, हम पोस्चर मेंटेन नहीं कर पाते हैं एंड शायद से हम अच्छे से परफॉर्म भी नहीं कर पाएंगे. विटामिन B12 हमें फूड्स में से नहीं मिलता है, हमें उसको बाहर से लेना पड़ता है. एज इन हमें उसे मेडिकली या क्लिनिकली लेना पड़ता है. उसके लिए आप मेडिसिन ले सकते हो, उसके लिए आप इंजेक्शंस भी ले सकते हो. वाटर सॉल्युबल विटामिन ह्यूमन बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं बिकॉज ऑफ वाटर सॉल्युबल है. इसकी वजह से हमें उनका डेली रिक्वायरमेंट, डेली इंटेक मेंटेन करना पड़ता है. दूसरा आता है फैट सॉल्युबल विटामिन. फैट सॉल्युबल विटामिन में सबसे कॉमन जो है वो है विटामिन डी. विटामिन डी हमें बहुत जरूरी है हमारे बोन्स के लिए. विटामिन डी को हम लोग सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, जो कि बहुत कॉमनली कहा जाता है कि अगर आप सूरज की रोशनी में आधे घंटे के लिए खड़े हो जाओगे तो यू विल गेट दी प्रॉपर विटामिन डी. बट सैडली दिस इज नॉट द केस. Because of pollution, the ultraviolet rays which we are getting do not activate the vitamin D3 in the human body. इसीलिए we again need to supplement our body with vitamin D3. Okay? विटामिन D3 की डेफिशिएंसी की वजह से बोन स्ट्रेंथनिंग जो है उसमें इफेक्ट होता है. विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के अगेन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. दे आर द एंटीऑक्सीडेंट्स. इसके अलावा वी ऑल्सो नो दैट विटामिन ए इज द आईसाइट विटामिन, जो हमें बहुत जरूरी है हमारी हेल्दी आईसाइट मेंटेन करने के लिए. So next we come to the minerals. Minerals are again very important for regulating the body processes. The most important minerals for us are calcium and iron. जैसे मैंने पहले बताया कि विटामिन D3 हमें चाहिए हमारी बोन स्ट्रेंथनिंग के लिए, इसके साथ साथ हमें कैल्शियम भी चाहिए बिकॉज हमारी बोन्स कैल्शियम से ही बने होते हैं. हमारी बॉडी एक नेचुरली अपने आप अपना कैल्शियम लेवल मेंटेन करके रखती है. बट अगर आपका फूड में से कैल्शियम इंटेक कम होगा तो बॉडी अपने आप बोन्स को एरोड करना शुरू कर देती है टू मेंटेन दी कैल्शियम लेवल्स इन द सीरम. एज अ रिजल्ट क्या होता है, हमारे बोन्स जो है वो वीक होना शुरू हो जाते हैं. एंड अगेन अगर हमारे बोन्स वीक नहीं होंगे तो हम स्टांस नहीं मेंटेन कर पाएंगे, हम पोस्चर नहीं मेंटेन कर पाएंगे. एंड जैसे कि मैंने पहले इसमें सेशंस में सुना था कि काफी लोगों ने कहा है कि बैक एक का प्रॉब्लम होता है. तो बैक एक का प्रॉब्लम कहीं ना कहीं पे शायद से विटामिन D3, विटामिन B12 और कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है. इसके अलावा अगर हम प्रॉपर्ली हाइड्रेटेड नहीं होंगे तो मसल्स फटीग में जाएंगे एंड दैट कैन आल्सो कॉज वीकनेस इन द मसल्स, और वो वीकनेस की वजह से भी बैक एक हो सकता है. तो बैक एक को बहुत सारे रीजंस हैं जिन्हें हमें एसेस करना जरूरी है. दूसरा मिनरल है वो है आयरन.
जैसे हम सबको पता है कि अगर हमारी बॉडी में आयरन कम हो जाता है तो एचपी का प्रोडक्शन कम हो जाता है। हेमोग्लोबिन इज दी हेमोग्लोबिन हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करता है। एचपी इज व्हाट गिव्स आवर ब्लड द रेड कलर। तो अगर हमारी बॉडी में एचपी कम रहेगा तो ऑक्सीजन सप्लाई कम होगा, ऑक्सीजन सप्लाई कम होगा तो बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से मसल्स फटीग में जल्दी जाएंगे एंड अ रिजल्ट अगेन हमारा परफॉर्मेंस जो है वो डाउन हो जाएगा। लास्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट इज वाटर। हम लोग खाने के बगैर रह सकते हैं पर हम पानी के बगैर नहीं रह सकते। तो वाटर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर डाइट, बट बीइंग एन आर्चर हम लोग शायद उसको कहीं पे इग्नोर कर देते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा वाटर इनटेक रेगुलर हो। वी नीड टू कीप चेकिंग कि हम कितना पानी दिन में पी रहे हैं एंड हमारे वर्किंग या ट्रेनिंग शेड्यूल के हिसाब से हमें उसे स्ट्रीमलाइन करना भी आना चाहिए। वाटर डेफिशिएंसी की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है। आपको प्यास लगे तब तक आप ऑलरेडी 2% 3% डिहाइड्रेट हो गए होते हो, बट एक आर्चर के लाइफ में डिहाइड्रेशन से क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, जो एनर्जी हमें प्रोवाइड करने वाले सबस्ट्रेट्स हैं उनका डिप्लीशन हो जाता है, हमारा कंसंट्रेशन टाइम, रिएक्शन टाइम कम हो जाता है, फटीग और टायर्डनेस जल्दी आ जाती है, हमारा रेंज ऑफ मोशन जो है वो कम हो जाता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट होती है एंड इसके साथ साथ हमारा जो स्पीड ऑफ मूवमेंट है वो भी इम्पैक्ट होता है। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि हम वाटर इनटेक प्रॉपर रखें। तो हाउ कैन वी कैलकुलेट कि हमें पानी कितना पीना है? उसके लिए एक बहुत सिंपल सा टेस्ट है जिसको हम स्वेट रेट भी कहते हैं। एक छोटा सा वेइंग स्केल लेना है। वेइंग स्केल छोटा सा मोबाइल होता है, हम कहीं पे भी उसे आराम से कैरी कर सकते हैं। तो हमें जब भी हमारा आर्चर ग्राउंड पे आ रहा है तो उसका पहले वेट करना है एक्सरसाइज से पहले, और हमें उनका वेट करना है एक्सरसाइज के बाद। साथ में हमें चेक करना है कि उन्होंने ड्यूरिंग द एक्सरसाइज ड्यूरेशन कितना पानी पिया था। तो सपोज ट्रेनिंग से पहले वजन था 70 kg, ट्रेनिंग के बाद द वेट वाज 68.5 kg and the athlete consumed almost 1 liter of water during the training and the duration of exercise was 2 hours. So that means 1.5 kg was the loss. He consumed 1 liter of water which became 2.5. So there was almost a sweat rate of 2.5 in the 2 hours. That means हमें 1 घंटे में half of that is 1.25 liters water consume करना चाहिए. So how do we use it in our practice? Before the exercise, before the training, at least 300 to 500 ml water consume करना है. During the event, during the training, every 15-20 minutes हमें 150 to 200 ml water consume करते रहना है. And after the event, we should be consuming at least 150% of the sweat rate जो हमने calculate किया था. Again, very important for us to remember is कि sweat rate differ करता है geographical location के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से। तो हर सीजन में हमको एक स्वेट रेट वर्कआउट करना पड़ेगा हमारे आर्चर के लिए। वाटर के अलावा जो दूसरी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है मार्केट में, विच इज दी स्पोर्ट्स ड्रिंक। स्पोर्ट्स ड्रिंक्स अच्छे हैं, हमें कंज्यूम करने चाहिए, बट वी शुड बी अवेयर कि हमें कौन सा स्पोर्ट्स ड्रिंक लेना है। स्पोर्ट्स ड्रिंक कुड बी आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। हमें आइसोटोनिक पे कॉन्सेंट्रेट करना है, विच इज 4 to 8% ऑफ दी कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ पे मैंने एक लिस्ट प्रोवाइड किया है जो आपको बाद में दिया जाएगा सबको, कि मार्केट में कौन कौन सा स्पोर्ट्स ड्रिंक अवेलेबल है। ये रेंज है, जो आइडियल रेंज है जो होना चाहिए, उसके हिसाब से आप कोई भी स्पोर्ट्स ड्रिंक सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 3 रेसिपीज दिए हैं जो आप घर में भी आराम से बना सकते हैं, एंड योर आर्चर कैन आल्सो कैरी देम वेरी इजीली। उसके बाद some tips to improve archery, to feed your brain, to relax your brain. So consume high glycemic index foods during the competition. Prefer curd or yogurt. Fresh fruits consume कर सकते हैं हम. We can always go for omega-3, which is in the form of fish oils, which is available in the market very easily. We could also consume pumpkin seeds या walnuts, जो हमको किसी भी दुकान पे आराम से मिल जाएंगे. विटामिन सी रिच फूड्स खाने हैं, जैसे कि आंवला मैंने आपको बताया हम ले सकते हैं, हम ऑरेंज खा सकते हैं, हम कीवी खा सकते हैं, हम मौसम्बी खा सकते हैं। How can we improve the hand-eye coordination or improve the eyesight? Prefer whole grains and fresh foods. Prefer nuts. Prefer choline-rich foods, जैसे कि अंडा है, टमाटर है। टमाटर में से हमें विटामिन ए भी मिलता है, बट कच्चे टमाटर का विटामिन ए बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पाती है। तो अगर हमें टमाटर में से विटामिन ए बेस्ट चाहिए
तो वी नीड टू कुक इट. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ चटनी और आप उसको कंज्यूम कर सकते हो. इसके अलावा ओमेगा 3 है इन टर्म्स ऑफ फिश ऑयल और फ्लैक्सीड्स ऑयल. वी कैन ऑल्सो हैव विटामिन B6 एंड B12 इंजेक्शंस और टैबलेट्स and concentrate more on the leafy vegetables. There are some special considerations for the female athletes. Females are more prone to a low HB. Anemia के chances females में ज़्यादा होते हैं, इसलिए हमारे ज़रूरी है कि हम उनका HB रेगुलरली चेक करते रहें. एंड अगर HB 7, 8, 9 है या 10 है तो उसके लिए एक मेडिकल इंटरवेंशन जरूरी है. बट इफ इट इज 12, 11 तो हम आयरन रिच फूड्स का भी कंजम्पशन कर सकते हैं टू इंक्रीज दी HB. तो हम लोग लीफी वेजिटेबल्स खा सकते हैं. बीटरूट है, बीटरूट के ऊपर के पत्ते खा सकते हैं, या फिर आप मूली के साथ साथ मूली के पत्ते भी खा सकते हैं, उनमें आयरन ज्यादा होता है. बीट में से हमें आयरन नहीं मिलता है. बीट में फॉलिक एसिड होता है, बीट में एंथोसाइनिन होता है जिसके वजह से उसको लाल रंग मिलता है. बीट के लाल रंग का और हमारे खून के लाल रंग का कोई संबंध नहीं है. सो प्लीज डोंट कंज्यूम बीटरूट थिंकिंग दैट उससे आपका HB बढ़ जाएगा. The other is calcium. Females are more prone to osteoporosis, as in muscle bone weakness ज़्यादा होता है, इसीलिए females को ध्यान रखना है that they have to keep consuming more of calcium rich foods. यहाँ पे मैंने कुछ photos डाले हैं of certain supplements which are available in the market. We have whey protein, casein, BCAA, glutamine, arginine, creatinine. ये सब हमें aid करते हैं recovery में. Whey protein is a fast absorbing protein and therefore it can be taken immediately after the event. Casein is a slow absorbing protein, तो इसीलिए हम उसको रात को कंज्यूम कर सकते हैं before we go to sleep. BCAA, glutamine, arginine, creatinine, these are all essential amino acids जो हमें muscle wear में हेल्प करते हैं और साथ में रिकवरी में भी मदद करते हैं. तो when a person is walking to us, जब आर्चर हमारे पास पहली बार आता है हम उसका फिजिक देखते हैं, हम उसका शोल्डर विड्थ देखते हैं, हम उसका हाइट देखते हैं, बट हम लोग उसका BMI भी चेक करते हैं. बट वी डोंट रियली चेक इनटू द बॉडी कंपोजिशन उसका, कि उसका फैट कंटेंट कितना है, उसका मसल कंटेंट कितना है, उसका वाटर कंटेंट कितना है. तो ये एक टेस्ट है जो एक बहुत सिंपल टेस्ट है जो आपने वेइंग स्केल पे खड़े होकर करना है और ऑटोमेटिकली पूरा रिपोर्ट आ जाता है जिसमें हमें पता चल जाता है कि एक आर्चर का वेट कितना है, आर्चर की बॉडी में फैट्स कितना है, मसल्स कितना है. तो एक बार हमें ये रिपोर्ट मिल जाता है तो इट बिकम्स इजियर फॉर अस टू वर्क इन फ्यूचर कि हमें उनके मसल्स बढ़ाने हैं या हमें उनका फैट कम करना है. इसके अलावा ये कुछ टेस्ट है जो इनिशियली बिगनिंग से लेके एवरी 3 मंथ्स हमें रिपीट करते रहना चाहिए, बिकॉज इससे हमें आइडिया मिलता है कि हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी क्या है और हम उसको कवर अप कर सकते हैं. सो टू समराइज, यू नेवर ट्राई एनीथिंग न्यू ऑन द कंपटीशन डे. हम लोग डाइट को ट्रेन करते हैं, जैसे हम ट्रेनिंग के लिए 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल लगाते हैं, वैसे ही हमें डाइट को भी ट्रेन करना है. नथिंग वर्क्स राइट ऑन द सेम डे, एंड इफ यू हैवंट ट्रेन्ड विद इट यू कांट कम्पीट विद द डाइट. सो टू समराइज अगेन कि हमें कैलोरीज, कार्ब्स, प्रोटीन्स कितना लेना है, वाटर इनटेक कितना रखना है ड्यूरिंग लाइट ट्रेनिंग, हेवी ट्रेनिंग, मीडियम ट्रेनिंग एंड हेवी ट्रेनिंग. Plan energy foods and fluids. Avoid fat, fiber, sugary and spicy foods. Choose foods that make you feel good. Don't try something new on the competition day. Keep looking for foods which are healthy. जहाँ पे हम जाने वाले हैं हमें पता है कि हमारा नेक्स्ट मैच अब टोक्यो में होने वाला है. Why not become acquainted to the foods which are available in Japan? तो यहाँ पे मैंने कंपैरिजन दिया है about the Indian menu and the Japanese menu, because वहाँ पे हमें पराठा, इडली, पोहा नहीं मिलने वाला है. तो उसकी जगह पे हम वहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं ये आपकी लिस्ट दी है. तो अगर थोड़ा सा हमें होमवर्क करके जाएंगे और इस चीज को हमारी डाइट में अभी से इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे तो वहाँ पे जाके सडन चेंज या सडन ड्रिफ्ट नहीं होगा हमारी डाइट में, जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस पर उसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा. तो इन these e-modules, every coach, everybody is trying to work on the various aspects of archery and hope कि आप इस सेशंस में से कुछ नया सीखते जाओगे. थैंक यू. जय हिंद. सेशन तो आपने बहुत ही सिंपल तरीके से लोगों को समझाया है कि क्या करना चाहिए, कैसे इसको यूज करेंगे न्यूट्रिशन, क्योंकि न्यूट्रिशन जैसा बता दे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है सभी लोगों के लिए, सभी आर्चर्स के लिए, क्योंकि हम सबको पता है बहुत बार हम वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए या नेशनल टूर्नामेंट्स के लिए एक हफ्ते बाहर रहते हैं, बट कभी जंक फूड नहीं
लॉस होता है, ऐसे समय में क्या लेना चाहिए, वो बहुत ही सरल तरीके से हिमानी जी ने बताया। हिमानी, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। Yes, sir. Please explain about essential food that an archer can get from home made food for a beginner archer between 11 to 12 years when he is going for training. सर हमारे लिए पहले इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सिंस इज 11-12 ईयर ओल्ड चाइल्ड, तो उनका अभी ग्रोथ हो रहा है, वो एडोलेसेंट स्टेज में है, तो यहाँ पे हमें उनकी ग्रोथ पे भी ध्यान देना है और इसके साथ साथ हमें जो उनका एनर्जी यूटिलाइजेशन होने वाला है ड्यूरिंग एक्सरसाइज उस पर भी ध्यान देना है। तो इसीलिए प्रोटीन, जैसे मैंने बोला कि बहुत जरूरी है हमारे लिए। अगर नॉनवेज खाते हैं तो अंडा प्लीज इंक्लूड करें। चिकन नहीं भी हो पाता है तो भी एटलीस्ट 4 to 5 एग्स इन अ डे हमें कोशिश करनी है उनको देने की। एंड अगेन डाइट कैसा है, सिर्फ एक फूड एस्पेक्ट से नहीं हम कवर कर सकते हैं, डाइट इज द एंटायर डे शेड्यूल। तो उसके अलावा आप चपाती कितना खा रहे हो, सब्जी कितना खा रहे हो, दैट आल्सो नीड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डाइट शुड प्योर वेजिटेरियन ईट, क्योंकि नॉन वेज वाले तो चलो चिकन खा लेंगे, आप आपका एग्स खा सकते हैं, बट वेजिटेरियन, इंडियंस आर मोस्टली वेजिटेरियन, उनके लिए आप क्या प्रिस्क्राइब करती हैं, इलीट एथलीट्स के लिए, बिगनर्स के लिए और अपना मिडिल लेवल के लिए? वेजिटेरियंस के लिए हम लोग वे प्रोटीन ले सकते हैं। वे इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड वो फास्ट अब्सॉर्बिंग प्रोटीन है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि हम वर्कआउट कितना कर रहे हैं उसके हिसाब से हम 1 स्कूप 2 स्कूप्स ले सकते हैं। इसके अलावा केसिन ले सकते हैं या फिर पनीर ले सकते हैं। तो अगर आप रात को सोने से पहले एक पनीर का टुकड़ा भी खा के सोते हैं, इट वर्क्स एज अ ग्रेट एनाबॉलिक प्रोटीन एंड विल हेल्प यू इन दी मसल बिल्डिंग। इसके अलावा बादाम है, खरबूज के बीज हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं जो हमको आराम से किसी भी दुकान में मिल जाते हैं। तो अगर हम ये मुट्ठी भर भी दिन में कंज्यूम करते हैं, दे आल्सो हेल्प अस प्रोवाइड विद द ओमेगा 3 व्हिच इज रिक्वायर्ड। हमने जब कंपटीशन में भाग लेते हैं तो ऑब्वियसली हमारा डिहाइड्रेशन होता है, वाटर ग्लूकोज का लॉस होता है, ऐसे समय में कौन से एडिबल लिक्विड्स हम ले सकते हैं कंपटीशन के समय में? तो मैंने 3 रेसिपीज बताए थे स्पोर्ट्स ड्रिंक के बारे में। तो हम वो स्पोर्ट्स ड्रिंक अपने साथ कैरी कर सकते हैं, या फिर आप सिंपल नींबू पानी भी लेकर आ सकते हो विद शुगर एंड सॉल्ट, या फिर BCAAs मार्केट में अवेलेबल है जो हम ड्यूरिंग इवेंट ले सकते हैं। ड्यूरिंग इवेंट हमें ध्यान रखना है कि हम लिक्विड फॉर्म में लें, हमें सॉलिड फॉर्म में नहीं लेना है, बिकॉज जो अब्जॉर्प्शन है वो सॉलिड का नहीं होने वाला है ड्यूरिंग द इवेंट। कंपटीशन के कितने देर पहले खाना खाना चाहिए? हेवी फूड एज इन अगर आप ब्रेकफास्ट या लंच कर रहे हो तो कम से कम 3 से 4 घंटा पहले। कंपटीशन से 2 घंटा पहले आप लाइट फूड खा सकते हो, जैसे कि आपने एक इडली खा लिया, या फिर आपने एक प्लेट सैंडविच खा लिया, या फिर आप दही के अंदर सीरियल्स डाल के भी ले सकते हो, केलॉग्स वगैरह जैसे मार्केट में अवेलेबल होते हैं ब्रेकफास्ट सीरियल्स। During competition, most of my students get sick. They have diarrhea because of water or food, because they are going to a different place for training at a different national place. So they, because of the fooding habit, they get the diarrhea. What do you do in such a case to make them fit for competition? So one is कि हम लोगों का वाटर का सोर्स क्या है, वी नीड टू चेक दैट। हमें बॉटल्ड वाटर लेना है, वहाँ पे टैप वाटर कंज्यूम नहीं करना है ड्यूरिंग इवेंट। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंकिंग कि हमें प्लेन वाटर नहीं कंज्यूम करना है, बिकॉज कई बार हम लोग ऑलरेडी इतना स्वेट कर चुके होते हैं और स्वेट के साथ साथ सोडियम पोटेशियम का लॉस भी होता है। जब आप प्लेन पानी लेते हो तो प्लेन पानी में सोडियम पोटेशियम नहीं है, उसकी वजह से बॉडी पे प्रेशर आ जाता है और जिसकी वजह से भी डायरिया हो सकता है। तो प्लेन पानी नहीं लेना है, इट हैज टू बी ऑलवेज विद द इलेक्ट्रोलाइट्स। दूसरा, मार्केट में कुछ प्रोबायोटिक्स अवेलेबल है टैबलेट फॉर्म में जो हम कंज्यूम करना शुरू कर सकते हैं पहले ही, जो है वो हमारा स्ट्रॉन्ग है। एंड अगेन एज आई सेड कि हमें अपने आप को ट्रेन करना है, तो हमें पता है पहले कि हमें कौन सी सिटी में जाना है, तो हमें पहले से एक्सप्लोर करना शुरू करना चाहिए कि वहाँ पे हमें फूड ऑप्शंस क्या क्या मिलने वाले हैं, सो दैट वी स्टार्ट ट्रेनिंग आवरसेल्व्स फॉर दैट बिफोर वी गो। Wonderful. Madam, ये what archer should take before workout in the morning schedule and the evening schedule? बिफोर वर्कआउट हम कार्ब रिच खा सकते हैं, हम खजूर ले सकते हैं, हम बनानास खा सकते हैं, या फिर जो बेस्ट इंडियन एनर्जी बार है दैट इज द लड्डू, जो ड्राई फ्रूट लड्डू हम लोग सर्दी के ठंडी के लड्डू बनाते हैं। हर रीजन के हिसाब से अलग अलग लड्डूस बनते हैं, तो अगर वो एक लड्डू भी हम खा के जाते हैं बिफोर दी वर्कआउट एंड वी हैव बनाना एंड डेट्स, दैट्स सफिशिएंट इनफ फॉर दिस। How to maintain diet in a lockdown time like Corona, जहाँ पे हम लोग घर के अंदर हैं, तो ऐसे समय में क्या डाइट खाना चाहिए?
एक तो आपको आपका टाइम शेड्यूल रेगुलर रखना है। हमको बाहर नहीं जाना है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कभी भी सो रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं। So the first priority is that we should have our regular timings, breakfast, lunch and dinner also। ये नहीं है कि हमारा breakfast lunch के टाइम पे हो रहा है। That is one। दूसरा is we need to work out on the expenditure of energy। हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर वर्कआउट नहीं हो रहा है तो हमारा कैलोरी इनटेक जो है वो कम रहना चाहिए। एंड जहाँ तक हो सके होममेड खाना है, जंक हमें अवॉइड करना है। एंड कीप ड्रिंकिंग वाटर इवन इफ यू आर इन दी लॉकडाउन। डोंट फॉरगेट टू ड्रिंक वाटर। What diet is the most advantage for archers to develop memory? Memory को develop करने के लिए। देयर इज नो सुपर फूड एज सच, बट अगर आपके डाइट में फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स ज्यादा रहेंगे तो इट विल कीप यू मोर एक्टिव। इसके अलावा नट्स में से हमें जिंक मिलता है, हमें मैग्नीशियम मिलता है, जैसे बादाम है, या एक फ्लैक्स सीड्स आता है जो छोटे से सीड्स रहते हैं ब्राउन कलर के। आप उनको भी हल्का सा रोस्ट करके अगर डेली कंज्यूम करोगे तो दैट विल आल्सो हेल्प यू इन बूस्टिंग योर ब्रेन पावर। Suggest diet for weight gain. Where my archers are very thin and so they are the skeleton. So in such a case, what do you advise us to have to weight gain? So weight gain is a balance of energy। आपने कितना एनर्जी कंज्यूम किया और आपने कितना एनर्जी एक्सपेंड किया, उसके ऊपर से वेट गेन डिपेंड करता है। तो हम लोग अगर बैलेंस मेंटेन करते हैं एनर्जी कंजम्पशन का और एनर्जी बर्निंग का, तो हमारा बैलेंस मेंटेन रहता है, वेट मेंटेन रहता है। पर अगर मुझे वेट गेन करना है तो मुझे कैलोरीज ज्यादा खाना पड़ेगा और मुझे एक्सपेंडिचर कम करना पड़ेगा। इसके अलावा हमें प्रोटीन ज्यादा खाना है, बिकॉज हमें वेट गेन में मसल गेन करना है, हमें फैट गेन नहीं करना है। वी डोंट वांट कि हमारे आर्चर का पेट निकल आया है। वी वांट हिज मसल्स टू बी स्ट्रांग, हिज आर्म्स टू बी स्ट्रांग। तो उसके लिए हमें प्रोटीन्स पे ध्यान देना है। उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है कि हमें वेट को रिड्यूस करना है, साथ ही साथ स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस बढ़ाना है। तो वेट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? बहुत बार हम वीज आर्चर्स हमारे पास होते हैं, हमारे आर्चर्स होते हैं, तो ऐसे ओबीज आर्चर्स के लिए क्या करना चाहिए? तो अगेन जब हमको वेट लॉस पे जाना है तो हम वापस नॉर्मली जो डाइट है उसको रिव्यू करते हैं। शायद से कई बार ऐसा होता है कि डाइट प्रॉपर है, मतलब जितना कैलोरीज हमें खाना है उतना जा रहा है, बट जो डिवीजन है, कार्ब ज्यादा जा रहा है, फैट ज्यादा जा रहा है। जैसे मैंने देखा है कि काफी बार मैंने कुछ आर्चर्स से बात किया था, तो उनका बोलना है कि मैम हमें कहाँ भागना दौड़ना होता है, तो हमको तो जो मिल जाता है हम वो खा लेते हैं, बट वो गलत है। तो शायद से कहीं ना कहीं पे इंडियन डाइट में कार्ब ज्यादा जाता है, प्रोटीन्स कम जाता है, इसकी वजह से वेट गेन हो जाता है। तो हमें अगेन जो प्रोपोर्शंस है फैट का, कार्ब्स का और प्रोटीन्स का, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। आप ये बताएं कि हमें बनाना विद मिल्क खाना चाहिए? यस वी कैन, यस हम खा सकते हैं, हम दही में डाल के भी खा सकते हैं। नॉन वेज इज बेस्ट इन लंच और डिनर? तो अगर आप रात को 10 बजे खाना खा रहे हो तो आप नॉनवेज खाओ या वेज खाओ, दोनों भी अच्छे नहीं है। तो आइडियली वी शुड बी कंज्यूमिंग एन अर्ली डिनर। तो अगर वो वेज भी होगा नॉनवेज भी होगा तो चलेगा, बट इंडियन नॉनवेज जो होता है वो बहुत ग्रेवी वाला होता है, तेल वाला होता है, तो वो नहीं चाहिए। नॉनवेज का फायदा तभी होगा जब आप उसको विदाउट ऑयल खाते हो, या आप बॉईल करके खाओ, या स्ट्यू करके खाओ, या फिर आप सिंपली उसको बेक करके खाओ। फिर आप लंच में खाओ, डिनर में खाओ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। गांव के जो खिलाड़ी होते हैं उनको पूरा डाइट नहीं मिल पाता, गांव के ऐसे खिलाड़ियों को क्या खाना चाहिए? सो वो डिपेंड करता है आपके पास अवेलेबल क्या है। अगेन कि नॉर्मली जो गांव में लोग रहते हैं वो बहुत ज्यादा मस्कुलर वैसे होते हैं बिकॉज उनका फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होता है। तो आई थिंक हमें उनके प्रोटीन्स पे वर्कआउट करना चाहिए। डाइटरी प्लान हमारा ऑफ सीजन, प्री सीजन एंड सीजन में क्या बदलते रहना चाहिए? कोई डिफरेंट प्लान होना चाहिए ऑफ सीजन प्रैक्टिस के लिए, कंपटीशन के लिए और कंपटीशन के लिए? यस, बिकॉज जब आप ऑफ सीजन में हो तब हमें यहाँ पे ज्यादा कार्ब्स की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे हम हमारी मसल बिल्डिंग के ऊपर, स्ट्रेंथ के ऊपर ज्यादा फोकस कर सकते हैं। तो इसीलिए हम ज्यादा प्रोटीन्स पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं व्हेन वी आर इन द ऑफ सीजन। ड्यूरिंग द सीजन बिकॉज हमारा ग्लाइकोजन रिजर्व हमें चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो इसलिए हम तब कार्ब्स इंक्रीज करते हैं। हाउ इम्पोर्टेंट इज टू कंज्यूम योक ऑफ एन एग? योग इज द बेसिक एसेंस ऑफ द एग, और उसमें ही ज्यादा प्रोटीन्स होता है। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के फैट्स भी होते हैं और कोलिन भी होता है। तो इसीलिए हमें योग खाते रहना चाहिए। इट्स ओनली इन सम स्पेसिफिक क्लिनिकल न्यूट्रिशन क्लिनिकल सिचुएशंस जब हम कहते हैं कि आपने येलो नहीं खाना है,
But for an archer, it is very imperative to eat the egg yolk also. क्या ये सही है कि प्योर वेजिटेरियन डाइट इनकम्प्लीट डाइट है? उसको कंप्लीट करने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे मैंने पहले बताया कि जो प्रोटीन सोर्सेज होते हैं उसमें एनिमल सोर्स जो होता है प्रोटीन का वो कंप्लीट सोर्स होता है, बिकॉज उसमें एसेंशियल अमाइनो एसिड सारे होते हैं जो हमें मसल बिल्डिंग के लिए चाहिए होते हैं, जबकि हमें वेजिटेरियन सोर्सेज में वो सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स नहीं मिल पाते हैं। तो बिकॉज अगर हम वेजिटेरियन हैं और हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो वी कैन ऑलवेज गो फॉर दी वे प्रोटीन विच इज इजीली अवेलेबल इन द मार्केट। वे प्रोटीन में 3 तरह के आते हैं, आइसोलेट आता है, कॉन्सेंट्रेट आता है और हाइड्रोलाइज्ड आता है। तो हमारे लिए जब हम सीजन में है, जब हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो वो टाइम पे हम आइसोलेट ले सकते हैं। ऑफ सीजन में हम वे कॉन्सेंट्रेट यूज कर सकते हैं टू फुलफिल दी प्रोटीन। कंपटीशन के समय क्या हम खाना खा सकते हैं? क्या खाना चाहिए? ड्यूरिंग द कंपटीशन, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमें हैवी फूड्स नहीं खाने हैं, हमें लिक्विड फूड पे कंसंट्रेट करना है। हम कर्ड राइस खा सकते हैं, हम दही के अंदर सीधे डाल के खा सकते हैं, या फिर आप सिर्फ आलू की सब्जी, प्लेन आलू की सब्जी उबाल के विद कर्ड खा सकते हो। जहाँ तक हो सके हमें हैवी ऑयल वाला खाना ड्यूरिंग कंपटीशन नहीं खाना है। ये 3000 किलो कैलोरीज पर डे, do you feel it is all for elite archers, mid level and beginner archer, or is it different? नो, इट इज डिफरेंट। ये 3000 जो है जनरलाइज गाइडलाइन है। अगेन आपका हाइट कितना है, आपका वेट कितना है और आपकी बॉडी में फैट परसेंट कितना है, मसल मास कितना है, उसके हिसाब से वो डिफरेंशिएट होता है डिपेंडिंग अपॉन कि आप वर्कआउट कितना कर रहे हो, ट्रेनिंग कितना कर रहे हो। अगेन जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है और कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो चेंज हो जाता है। What food, common medicines and food supplement should we avoid for not testing positive during doping? There's a big list given by WADA जिसमें हमें बताया गया है कि हमें कौन कौन से केमिकल से अवॉइड करना है। बट इन जनरल जो भी आप सप्लीमेंट ले रहे हो उसमें आपको ध्यान देना है कि उसके ऊपर एक डोप फ्री का सर्टिफिकेशन हो, जो कि BSCG का या HCG का आता है। वो सर्टिफिकेशन अगर है तो मतलब ये है कि दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज सेफ फ्रॉम डोपिंग। During competition, generally in all the nationals, हम लोग को मुश्किल से 1 घंटे का टाइम ही मिलता है। आपने कहा है कि हेवी डाइट नहीं लेना चाहिए, तो ऐसे समय में जब 1 घंटे का गैप है, हमें क्या खाना चाहिए? तो हम वे प्रोटीन ले सकते हैं, पूरा सर्विंग साइज नहीं लेना है, हाफ सर्विंग साइज ले सकते हो वे प्रोटीन का। इसके अलावा BCAA बीच बीच में पीते रहना चाहिए। एनर्जी बार्स आते हैं, वो आप ले सकते हो, या फिर जेल बार्स आते हैं। जेल बार्स जो है उनमें से वाटर कंटेंट होता है और कार्ब कंटेंट होता है, तो हम वो भी कंज्यूम कर सकते हैं इफ यू हैव जस्ट 1 आवर बिटवीन द इवेंट। बट हैवी कुछ नहीं खाना है। आप प्लेन दही केला खा सकते हो, या स्ट्रॉबेरीज ले सकते हो, या फिर जो हम रायता बोलते हैं, फ्रूट रायता रहता है, वो कंज्यूम कर सकते हो। What should be the proportion of nutrients during the preparatory phase of periodization? तो वो मैंने आपको पहले जो स्लाइड्स है उसमें एक्सप्लेन किया है that during periodization we need to have a proper balance of a high protein diet with a carbs and with 1/4 of the carbs and 1/4 of the vegetables and the fruits. जनरली देखा गया है कि बहुत सारे हमारे स्पोर्ट्स पर्सन खाने को छोड़ देते हैं। इंडिया जैसे कंट्री में जहां खाना दुर्लभ है बहुत लोगों के लिए, आप ये जो फूड वेस्टेज के बारे में क्या कहना चाहेंगी? तो एक तो क्या होता है, हमें एक सीख दी जाती है कि हमेशा अपना प्लेट खत्म करना है, आपको अपना प्लेट खाली नहीं छोड़ना है कभी भी, एज इन आपने कभी वेस्ट नहीं छोड़ना है, दैट इज ट्रू। बट इसके अलावा पहला चीज ये होता है कि आपने पोर्शन जो आप ले रहे हो प्लेट में वो ध्यान देना है। एज इन कई बार क्या हो जाता है, हम लोग बहुत सारा ले तो लेते हैं, अब आप कहीं बाहर गए हो खाना खाने के लिए, किसी नई कंट्री में हम लोग गए हैं मैच के लिए, वी सी सो मेनी फूड स्टफ्स, वी बिकम फैसिनेटेड कि अरे ये भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो। हम सब कुछ भर लेते हैं प्लेट के अंदर, बाद में हम उसको छोड़ देते हैं। तो पहला चीज शुरू वहां से होता है कि आपने थोड़ा पोर्शन लेना है, अगर पसंद आता है तो आप एक सेकेंड सर्विंग ले सकते हो। एंड दूसरा, जब भी आप खाना खा रहे हो तो पूरा भर के नहीं खाना है पेट को, हमें वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन हमारा फूड लेवल कितना है स्टमक का, उसके हिसाब से हमें प्लेट में लेना है और उतना ही कंज्यूम करना है। थैंक यू हिमानी जी, आपसे बहुत अच्छे आपने बातें बताई हम लोग को। मेरा पूरा विश्वास है कि जो हमारा कोचेज हैं, आर्चर्स हैं, उन लोग सुने, उन्होंने ये रियलाइज किया कि क्यों कार्बोहाइड्रेट इंपॉर्टेंट है, क्यों प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, कितने घंटे पहले खाना चाहिए, क्या चीज कंपटीशन के समय खाना चाहिए, और जब भी किसी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जाएं पता करें कि वहां पे क्या खाना उपलब्ध है,
उसके हिसाब से अपना डाइट प्लान बनाएं। हो सकता है कुछ उनको लेके भी जाना पड़ सकता है। लिक्विड डाइट के बारे में आपने बहुत अच्छा बताया कि कंपटीशन के ड्यूरेशन में लिक्विड डाइट ले, क्या लिक्विड डाइट ले वो, क्योंकि आजकल बहुत हमारा कोल्ड ड्रिंक्स का आदत होता है बच्चों का, जो एक जंक है जिसको आपने बोला कि नहीं उसको नहीं, और होममेड जैसे आपने बोला नींबू पानी या उसमें आप अन्य चीज करके, वो भी आपने बहुत बताया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके जो आपने बताया। फिर से हम आप सभी कोचेज को बता दें। सिर्फ एक क्वेश्चन, सिर्फ एक रिपीटेटिवली क्वेश्चन आया था अबाउट द हाइट एंड द वेट। तो सिर्फ एक बेसिकली बताना चाहूंगी कि आपका जो हाइट है उसके हिसाब से आपका वेट कितना होना चाहिए। तो एक गोल्डन रूल है कि आपने आपका हाइट लेना है सेंटीमीटर्स में। फॉर एग्जाम्पल आपका हाइट सेंटीमीटर्स में है 165 सेंटीमीटर्स, तो उसमें से आप जो फर्स्ट डिजिट है जिसको जो है 1 वो कट कर दीजिए, तो लास्ट के 2 डिजिट है वो आपका वेट हो जाता है। सो दैट शुड बी द अप्रोक्सीमेट आइडियल वेट ऑफ द बॉडी। वंडरफुल, बहुत ही छोटे वे में आपने बता दिया कि क्या हाइट वेट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। बट हम अपने सभी कोचेस आर्चर को बता दें, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हमेशा एक बैलेंस डाइट बनाता है जो आपके नेशनल कैंप में प्रोवाइड किया जाता है। उसी चीज को आप फॉलो करेंगे तो भी अच्छा है, क्योंकि वो तो आपको मिलता ही कैंप में। वो चीज कोशिश कीजिए, क्योंकि टॉप्स में आपके और इवन ड्यूरिंग द खेलो इंडिया के सभी आर्चर्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 5 लाख देती है, टॉप्स भी देती है, जिससे कि वो डाइट को फॉलो कर पाए। अपने जो सपोर्ट सिस्टम में जितने न्यूट्रिशनिस्ट हैं या अपने डाइटिशियन से आप बात करके अपना प्लान बना सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपके पूछा ट्रेनिंग का, तो काइंडली इस पे ध्यान दें। जैसा आपको ये भी बता दें कि 5 बजे शाम को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक स्पोर्ट्स साइंस का हमेशा सेमिनार होता है, उसका आपको मैसेज आता है, वो काइंडली उसको आप जरूर सभी कोचेस से निवेदन है उसमें आप जरूर भाग ले, काफी आपको नॉलेज सीखने को मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा विनीत जी जो हमारे साई से जुड़े हुए हैं, अगर वो कुछ बोलना चाहेंगे, या हमारे जो कोचेस कमिटी, कोचेस डेवलपमेंट कमिटी के डॉक्टर जोरेस या डॉक्टर हुसैनी है, वो अगर कुछ बोलना चाहेंगे तो काइंडली बोले। Yeah, Sanjeev, thanks very much. In continuation of what you said about the Ministry of Youth Affairs and Sports guidelines regarding this diet and all, Himani ji, I just would like to clarify the food supplement you had shown few jars and all from packings and all. I mean, strictly it is the guidelines of the ministry that this whey protein and all this supplement should be taken only under the supervision of the sports scientists, number 1. Number 2, these are provided only by the federation and no individual should take unto themselves. So this I wanted to make it clear. Kindly note all the coaches and everyone who is here. Thank you. Very true, sir. Very right. Yes. वंडरफुल वंडरफुल विनीत जी, बहुत अच्छा आपने बता दिया। सभी कोचेस को ये काइंडली नोट करें, ये जो आपने जो बताया था प्रोटीन के बारे में, ये सप्लीमेंट्स ओनली फेडरेशन देगा, वो उसके गाइडलाइंस में नहीं है मिनिस्ट्री के। इस चीज को ध्यान दें, और ये भी किसी एक स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर या फिर आप एक न्यूट्रिशन या डाइटिशियन से बात करने पे ही ले। अगर हमारे कोचेस डेवलपमेंट कमिटी या प्रमोद चंद्रकर जी हैं, अगर वो बात करना चाहें काइंडली आप बोल सकते हैं, हुसैनी जी या डॉक्टर जोरेस। तो मैं इसी के साथ अब ये प्रोग्राम को यहाँ पे एंड करते हैं। फिर मिलेंगे हम कल अगेन 9 बजे। कल फिर आपका जब मंडे को, कल तो ऑफ रहेगा, लेकिन मंडे को हम लोग ABC ऑफ आर्चरी के बारे में रंजीत चामले साहब जो हमारे पुणे के प्रोफेसर हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल मेडलिस्ट उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं, वो जुड़ेंगे हमसे 9 बजे मंडे को और आपको बताएंगे कि बिगिनर आर्चर्स और मिडिल